developer myself, have been working on a big app development consultancy here in Denmark, and now I'm working with some of my partners and creating our own product. तो उस project में मैं CTO हूँ. That product is called Follow, by the way. So what I want to talk about today is app development lifecycle, and the main topic in that is a feature-focused approach with GitHub Actions. So I will explain through the slides what that means, why do we want to do that, and how can we actually do that in practical. So a feature-focused approach is a development process where every single feature has its own test build. And you may be wondering कि क्यों हम इस तरह का करना चाहते हैं? Why do we want to have these kind of builds? But for now, let's assume that we have for every feature we have a separate build, and later I will show you some of the benefits of it. So one of the constraints I want to set is like every feature should be able to pass the QA test, whether you have an internal QA team in your company or organization, or you might have some other external QA teams, maybe a client you are working with, they have their own QA team that they do want to test that kind of product through. And the end goal is like that fulfill client requirements. Like for every feature, you should fulfill client requirements. So now moving ahead, why do we want to do that? So the motivation behind future-focused development is, let's assume a typical workflow is like you have a client who wants to build an app, and that app has some different features. They deliver those specification, they create a specification out of those features and deliver to a company's project manager. And that project managers with some other technical people create some technical requirements and plans the whole like the process, and creates like some epics if you are following a Scrum model, and creates user stories and other things that might be needed for the developer. And then you reach a state in that life cycle that the requirements or tasks reach the developer, and developer just do what that is described on those requirements. And in the end, when the development is finished, all of those things combined, like a product combined, is delivered to the project manager, and the project manager delivers to client. So I just want to ask you a question. If you say that your company is following this model, did anyone see a problem with this model or have experience? No, I don't hear anything. काशिफ, अगर कोई comment में है चीज़ तो वो मुझे kindly बता दीजिएगा. Okay, fine. That's okay. Totally cool. There's nothing, but I will try to explain some of those things that might arise. So here I kind of have listed some of the things that I have seen in. Oh, I can hear myself. Okay, so I have seen some of those things, and I've listed those here, and I will start by explaining some of historical reasons. One of the thing is that many companies from Europe, for instance, Denmark, Sweden, or let's say England, or American companies, they outsource some of their products and development to Asia because it's cheaper to develop in Pakistan, India, Bangladesh, or some other countries. And one of the things they have faced through times, I can remember one of the examples. I was working with an insurance company here in Denmark, where they told me that they had a big application software system that they outsourced in Pakistan, and they made a whole like very complex requirements and sent those very detailed stuff to Pakistan managers. And what they actually got was quite a product that was not what they expected. So in the end, they received something that was defected, or what
actually didn't fulfill the requirements as they desired or as they thought. So this brings us to my next point, that is A to Z requirement specification of digital system is very hard. So why is it hard? Let's take example. For example, in Android, there are like new features are constantly being added to the platform. There are many developers around the world who are working constantly improving bugs and adding more capabilities, adding new sensors and making the old ones better. For example, for a couple of years back, you only had like a pin code, then you got like a pattern thing in Android, and then you got the biometrics, fingerprint scanning, and now you have a Face ID thing going on. So that there are a lot of like complex things going on, and if you want to describe them from A to Z, it becomes really hard to do it before actually the development starts. So you kind of close all the box for creativity, all the developer input they might have. And this leads me to the kind of next thing I want to talk about. It's kind of the choosing the development process. So the example given before is kind of what waterfall looks like. So you have each stage is a like closed stage, and you fulfill that stage before you moving to the next one. So it's kind of like a waterfall thing, and it historically it has proven to work very good if you are doing some instruction works, for example, building a bridge. So you can calculate like every single thing on that, because you know, okay, there is wind, what is the worst case, how much wind there can become, what kind of materials that are needed, if you are building a bridge over water, like what do you need. So you kind of can plan all those, because with time companies get more experience with that, and they know exactly like what they do need to plan that. So waterfall kind of approach works very good for that. But moving on to like today's world, where we build a lot of digital system, or at least for us, we're working on a digital kind of world. We want to build a digital system for a smartphone. Let's say, for instance, there's an app we want to build. Well, smartphones today have a lot of capabilities. They have a lot of intelligent sensors, or sorry, they have a lot of sensors like GPS, gyroscope, and other sensors that you might want to leverage. And on top of that, you have some intelligent software that makes it possible to do what we can today with apps. So what like moving ahead with this kind of thing, the agile kind of process makes you more flexible. It lets the client also be more flexible with requirements, so you can move on with the development and you can easily adjust along the way. So looking at some of the consequences, if I compare it to waterfall, well, as I mentioned, worst case is that a client gets something that is different or behaves different than what they wanted. And the kind of the modern way of development today, or a rapid and fast development workflow, isn't like kind of like suitable for waterfall. So this rapid and fast development workflow requirement does not fulfill. Here's something else for motivation. I've taken a graph from a source which I found on the internet, and what this says something about the defects and bugs that might appear in a system you are developing or have developed before. And sometimes those bugs are just because we have not done so good code review, or have some lag in our code. But other times there are like bugs that appear because new updates to platform come. So the thing is, this analysis have shown that the cost increases drastically depending on where you are on development workflow. So for instance, in this graph, we kind of see a unified process model where you have some requirement analysis, design, coding, testing, and maintenance. And the maintenance is where, let's say, for instance, you have an app that is out in Google Play, and you want to maintain it, like make sure the bugs gets fixed and the platform updates are like supported, and you kind of along the way add some new features. So when we are fixing those things, some of the things we can't avoid,
in like appearing in maintenance phase, but some of the things we can do avoid, and those are the things that we do want to avoid, because we will in the end the client will actually benefit from it, and you as a developer will have a great product you will deliver. So moving ahead, how can we fix these issues? Well, I believe, or I have worked with agile iterative processes. You may also have worked with those, and that is totally cool. So I today lean upon a different approach. You might have also worked with that, or you might not. But what I'm suggesting is, like, for each, let's say you have an app with 10 features, and for each feature you want to have a different kind of isolated environment, and we can do this by planning ahead of time with some sprints. So for instance, let's take sprint 1, for example. Here we develop feature 1, and we go through the whole process, like designing, building, testing. And the testing phase, maybe you can have some builds sent to your client or QA teams, and they might review this and you might get some feedback. But in the meanwhile, you maybe have moved on to the next sprint, where you are developing a feature 2. And when those feedbacks come, you can actually, you must have time enough to actually do this. So it's kind of also a thing, the set thing that project managers should have in mind when they are like planning those sprints. So they might have a space for, like, okay, some previous feature improvements might appear. So it's a part of planning as well. And you kind of follow this workflow where you send the builds out, get some feedback. You will, in the meanwhile, maybe move ahead with some new features, and you ship them as well. And maybe you do improvements along the way, because you get constantly client feedback. And the end, you reach to a state where you have a stable version of that product, and then your client might not have those kind of surprises, or you might not be called up by your project manager night 12 o'clock or 11 o'clock that, hey, we need to fix this issue because the whole thing is breaking down. So moving ahead, how can we do it? How do we implement this kind of approach in app development? Well, I suggested that we can have like separated builds for each release. Like, for instance, let's take some feature 1, where you might have a special versioning system in your enterprise. You can have like a feature specific version number, and then you might want to have different builds for that feature. So if you have like a 5 builds for feature 1, the version should stay the same, and build numbers might be increasing. So this is the kind of structure you can follow. It's what I followed along through the time, and it works really, really, really good. And what are the benefits you get from this? Well, one of the big benefits is that you get isolated feature builds that can be reviewed by your internal or external QA team. You can get client feedback by sending them those builds, and you can apply adjustments along the way to those specific features or builds. So the main key thing is feedback on each feature, and in the end, you will reach a state where release version meets the client requirements because they were involved in the whole process. And that's the kind of thing modern digital systems are following today to achieve the kind of needs that today's world have. So how do we implement it? How do we make it practical and fast? Well, I think some of you might know what version control is. So there are like different clients for that, like Bitbucket, GitHub, GitLab. In the core, they are still all using Git. So you kind of have the same kind of implementation-wise thing going on. But I suggest you kind of have branch per feature, and then you use Git tags. And I will come to that part in later. So, and there are some platform-specific tools, like in Android, you have the Android alpha beta testing in Google Play. In iOS, you have Apple Test Flight. And then you might have also other tools from other companies that can do both. And one of those things is Firebase App Distribution, which is developed by Google under Firebase Services. And the last and most important thing of today's talks is CI/CD, and you might want to use that to avoid manual app signing and uploading, and you might run some other tasks as well, such as automated unit tests, UI tests,
in a test-driven development kind of workflow. So here I've taken an example from one of the projects I'm working on, and this screenshot is actually from the actual builds of that project. So if you see the bottom part is I have 0014 version number, where I have actually multiple builds with that version, because when we first shipped out the version, there were some things. We took that feedback and we actually deployed a new version. So you kind of follow that through until that kind of thing is fine polished and you move ahead. You might be actually doing multiple things at the same time, so you can have those kind of implementations as well. What Firebase app distribution allows you is it allows you to distribute those to everybody who actually might have a Gmail account, or if your organization is working on Google Workspace, then they can be invited as well. You can also create invite links for each feature build, and it also supports different tester groups. So for instance, let's say this is an Android specific build, so I might have a team or people that want to test that build. So I distribute it to the QA personnel that's sitting within an Android device, or maybe it's a fine polished feature, so I can also distribute it to the project managers or clients. And it all comes with a nice command line tool, which is actually the Firebase tool. It allows you to specify a path where the build is, add release notes, and specify the tester groups. And if you specify the tester groups, your app is automatically distributed to the testers when it's uploaded. Here is an overview of what the client sees, or what your QA must see. Well, they have an app, or they might have installed the app already, what is called app distribution on iOS and app tester in Android. So they can actually go into that app, which opens a web view, and here you get actually listed all the apps you might be invited to. You can select the particular app you want to get a test build from. And when you do that, you can download that, and it also allows you to change between those builds you have. So let's, for instance, say I want to test a build number that is 146 on the slide. I can easily download that, so it will actually replace my existing app with the other one. So it is very flexible, and it allows the other people who might be interested in testing the app, or clients, to actually test those and give you the feedback you need. And recently they also added, I think they added the support to upload to Google Play directly from Firebase dashboard. So that's kind of neat, and I hope they also add something for iOS, but I'm not sure that is coming anytime soon. And there might be other things that I remember that are good too to mention, but we will not cover them today. So just to give a kind of live demo, I'll show you some code. I'll just start with some code. I've just created a simple Jetpack compose activity where I haven't done any modifications other than just added some version name and version code. And what I've done actually, it's in the build Gradle app level build Gradle file. I've specified some code which actually takes the parameter from command line. So when you're building, you assemble, let's say you assemble your APK through the debug build or release build variant. So you kind of can supply those arguments as well. And I will show you this in practice on GitHub Actions, how you can add those. But I've kind of set them dynamically, and I've checked. So if they're not like supplied, we can actually just bypass them to default values, because you might be running locally on your machine and testing and coding. What I've done more as well is I've added a signing config. So here for debug version, I've just created a debug key store with some configuration. And here I kind of, parsing that to that variable. And some other configurations that are not secure in this environment. But if you're working in a production environment, you might also want to like add your key password and other stuff from command line arguments as well. And in the end, I'm just applying that signing config to each variant of my app.
and adding also a version name suffix to the debug build. So let's just see what we have. Let me show you the code. So I've just created a sample project where I've initialized GitHub workflows. And I'm not going to explain each thing in detail because Wajahat will cover that in the upcoming talk. So what I've done is I specified a trigger. Trigger is basically how that workflow starts. And I've said that I want to start it when you push a tag, a Git tag with that pattern. So this workflow gets started because this fulfills. And I kind of use that pattern also to I use this to set my version number also in the app. So I can then add the tag with the version I want, and my build will get that. And I have some configuration going on here. So what we do typically we have some jobs we want to run in a GitHub action. I have this first job, which is build. And in this job, we are like naming it. I have specified the distribution I want to run in. I want to run in Ubuntu latest because it's the cheapest and fastest thing to build Android and almost everything except iOS, where you need macOS runner. And I have some steps here, which I'm just generally going to tell a little bit about, but not going to go in detail. So GitHub Actions works in a way that like there you have some predefined actions that you can use, and you can create your own ones as well. And you can also run some bash scripts if you have. You can actually do anything that you can do in Ubuntu command line. So you're basically controlling this machine with some pre-built code, or you add your own code. So the first thing I do is, because this is an isolated environment, I do not have my repository code, so I can get that using this GitHub Actions, which is checkout. So it will give me all the code this repository have. And then I configure my environment. I take the run number, which is unique for every workflow. And this is quite nice because I can use this with my version code. And then I can create also a version name out of the tag and save actually both of those variables in my environment. And later on, I set also a JDK version in the machine. I install the necessary Android tools, and then I run the Gradle command to get the dependencies, and then I assemble a debug version of my product. So here, again, you can see I actually specify the parameters which I define in my app level Gradle file, and I actually take those variables I created in the configure phase from the environment and assign them to that. And one of the things we also need to do, we need to store the artifact that is being generated by this command. So the default path is, as you can see, that is the one. And why we do need to store it is because since we are running on isolated environments, I have another job which does the upload thing. So I need that build, but because these are like two different machines or containers of Docker, I need that artifact in this machine. So I kind of use this upload artifact action, and then I will do the download artifact action in this this separate task. And since I specify it with a name, I can use that name to get it again. And then I also specified that this job needs the build job to be completed. Otherwise, we cannot upload. So what will happen is GitHub Action will automatically detect that there is a constraint set to this job. It will not start until this first job, which is called build, completes. So I kind of, when that first job is complete, I kind of run this code. So I download the artifact, and I use a community action to actually just upload it. And here I also have defined some secrets in my environment, so I do not show them to anybody. And I specify a tester group and the file which was downloaded. So let me just demo like how do you start it. Well, you can push a new tag of Git via command line, but you can also do it in GitHub in the releases thing, where you just say draft a new release, and let's say we want to create a new release, and
if you see, this follows the pattern I specified in my file. I choose the branch I want to trigger this from, and I'm just gonna mark it with pre-release, publish. And if I go to GitHub Actions, now you can see a new job is started, and these are kind of linked, and this cannot be started before job cannot be started before this one is successfully completed, because only then I will have a binary that I can upload to Firebase app distribution. So I'm not going to wait for the whole job to complete. I can just show you one of the earlier jobs. You can see this totally took me 3 minutes and 70, or not me, the machine took 3 minutes and 17, or sorry, 3 minutes and 37 seconds. This is fast, you know, and you do not want to do this on your own machine every time you need a center to build. So this is why you must have some CI/CD knowledge to like deploy these kind of things automatically. You might also have some other kind of jobs like linting, unit testing, some other stuff which you might want to run in every pull request or every commit. You can all specify those on the workflow you're working on. And if you want to see, you can also actually go in and see all the logs that this is printing when we're installing Java, or like fetching all those dependencies. So you kind of get the whole overview of this. In the Firebase side, if you go in the app distribution, you can see I've actually gotten some of those builds I've run earlier, and you can see these have actually the version that I specified. Since I'm offsetting my versions code with 100, so it's the 10th job I've run. So it incrementally goes one up every time you run the workflow. So this gives me the whole kind of package for completing and uploading and automatically assigning version code, and the version name I can specify myself using a tag, and the build number is specified with some build that is running on workflow. And I think that works very well for this approach. So yeah, that's kind of it. That's how you do it. And I have some extras that I also want to just wrap up with. I've created this repository, and for now it's just private because I have some sensitive Google JSON stuff which I want to encrypt before I make it public. So I will make this public, and you can fork it, build upon it, maybe add some more features to it, like uploading to Google Play. My thought was actually I will cover both those things, but because of time I couldn't take both of those. But I will do it in the upcoming weeks. So just keep an eye, and please contribute if you have. We can all learn something from this and inspire others as well. And the last one is I want to cover how mature is this kind of approach I've just demoed you. Well, it's actually a common practice all around the world. So every company, like major company, you might know Google, Amazon, Facebook, Microsoft, they all are using similar approaches to kind of meet up the requirements digital systems these days have. So I will wrap up with this. Thank you for listening, guys. And I hope you learned something. And yeah, thanks. Any questions? If you want to take now, we can do it. We can also do it after when Wajahat has covered his part. Nope. Well, I guess we'll take the questions later then. Hello, Assalamualaikum. Can you hear me? Anyone? Yes. Okay, thank you. So thank you, Khurram, for the amazing talk. It was very insightful. आज भी मैंने कुछ नया सीखा build features के बारे में. So thank you, everyone. I hope everyone enjoyed it. So I'm going to share my screen. Okay. Okay. तो आप लोग देख सकते हैं? Yes. Okay. Children pass होता. ओके तो खुर्रम ने जो है वो इस बारे में थोड़ा एक्सप्लेन किया कि
किस तरह से हम लोग बिल्ड फीचर को यूज़ करते हैं और किस तरह से एक फीचर की हर फीचर की अलग सेपरेट बिल्ड होती है, और उसने पूरा एक्सप्लेन किया कि क्या कहते हैं एजाइल और इटरेटिव प्रोसेस को किस तरह से हम ऑटोमेट कर सकते हैं और उसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो अभी मेरी जो टॉक होगी वो मोस्टली ऑटोमेशन विथ गिटहब होगी, और मैं अभी इसमें कुछ और चीज़ें भी एक्सप्लेन करूँगा। So before we get started, if anyone of you do not know me, my name is Wajahat Karim, and I'm a Google developer expert in Pakistan in Android, और मैं पिछले तकरीबन 10 ईयर से काम कर रहा हूँ, और आई एम ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर, टेक्निकल राइटर, और अभी मैं एल टेक्नोलॉजी में एज अ लीड एंड्रॉइड इंजीनियर काम कर रहा हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे लिए ये है कि व्हाट इज CI एंड CD। लाइक हम लोग ये टर्म्स जो है ना आजकल जॉब डिस्क्रिप्शन में भी बहुत देखते हैं, और लाइक व्हाट एग्जैक्टली CI और CD का मतलब क्या है, और हम थोड़ा सा इस बात पे भी कवर करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत बार क्वेश्चन हियर किए हैं कि बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि यार CI CD तो डेवऑप्स का काम है, इसमें एंड्रॉयड इंजीनियर का क्या रोल है। तो हम इसके भी ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे, और कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाऊंगा CI CD का, और फिर हम CI CD को प्रैक्टिकली एंड्रॉयड में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो CI CD का मतलब ये है कि CI CD इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डेवलपिंग समथिंग, और उसके बाद फिर आप वो जो कोड है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो उस प्लेटफॉर्म पे जिस प्लेटफॉर्म पे वो है। तो फॉर एग्जांपल CI कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, और कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन में हमारे पास 3 चीज़ें हैं। यहाँ पे जो भी ब्लू है वो CI है, ठीक है। तो हम पहले डेवलपमेंट करते हैं, बिल्ड करते हैं, और उसके बाद हम पहले प्लान करते हैं, और उसके बाद फिर हम कहते हैं चलो भाई इसको कोड किया, कोड करने के बाद हमने उसको बिल्ड किया, और बिल्ड करने के बाद हमने उसको टेस्ट करना, ठीक है। तो जहाँ तक हो गई CI कि भाई हमने जो सोचा था वो हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है, और अब हम उसको रन कर रहे हैं और वो सही तरह से बिल्ड हो रहा है, दैट्स CI। अब आगे जो है ना वो CD शुरू हो जाएगी। तो CD का मतलब ये है कि अब वो जो बिल्ड हो गया है ना उसको आगे तक पहुंचाना है, यूजर्स तक, कस्टमर्स तक, टेस्टर्स तक, प्रोडक्ट मैनेजर्स तक, बिजनेस टीम तक, किसी भी तरीके से जो भी उसमें इन्वॉल्व हैं लोग उनको पहुंचाना है। तो हमने पहले टेस्टिंग की, टेस्टिंग के बाद रिलीज किया, रिलीज के बाद हमने डिप्लॉय किया, फिर डिप्लॉय के बाद जो है CD खत्म हो गई। अब जो है ना बिजनेस वालों का काम है कि वो जो है ना वो फिर उसको ऑपरेट करेंगे, वो फिर उसको मेजर करेंगे, और फिर फिगर आउट करेंगे यार इसमें ये चीज़ होनी चाहिए, इसमें वो चीज़ होनी चाहिए। फिर अगेन वो प्लानिंग वाला साइकिल शुरू हो जाएगा, फिर CI चलेगी, फिर CD चलेगी, उसके बाद फिर मेजरिंग चलेगी, ठीक है। तो ये जो CI वाला काम है ना ये एंड्रॉयड डेवलपर का काम है। फिर जो CD वाला काम है वो उसूलन अगर हम बैकएंड की बात करें या सर्वर्स की बात करें तो यूजुअली वो जो काम है वो डेवऑप्स इंजीनियर्स देख रहे होते हैं, और ऑटोमेशन इंजीनियर्स देख रहे होते हैं, या फिर रिलीज इंजीनियर्स देख रहे होते हैं। तो लेकिन पाकिस्तान में मैंने देखा है कि कंपनी साइज जो है वो उसमें ज़्यादा रोल डाइवर्सिफिकेशन नहीं होती। तो फिर ऑफ इन टाइम मैंने नोट किया है कि जो डेवऑप्स वाला काम है वो खुद इंजीनियर्स कर रहे होते हैं, डेवलपर्स कर रहे होते हैं, एटलीस्ट एलिफ में भी हम खुद कर रहे हैं। तो अब CI CD जो है वैसे तो उसके बहुत सारे टूल्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हो। ट्रेविस पहले ट्रेविस आया था, फिर जेंकिंस, सर्कल CI, एप सेंटर, गिटहब एक्शंस, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर, AWS, गूगल क्लाउड, और पता नहीं क्या क्या, मतलब बिटराइज, और भी पता नहीं कितने सारे टूल्स हैं जो यही काम कर रहे हैं। तो मकसद सिर्फ एक है, मकसद यही है कि जो आप कोड उसके साथ लिंक करोगे इधर किसी रिपॉजिटरी के थ्रू, या आप उसमें कोड होस्ट करोगे, वो उस कोड को एक तो बिल्ड करेगा और दूसरा उसको डिप्लॉय करेगा। ये है किसी भी CI CD सोल्यूशन का एरिया ऑफ सर्विसेज जो आपको दे रहा है। तो हर किसी में अपना फर्क है। फॉर एग्जांपल जो मेजॉरिटी बिग कंपनीज होती हैं वो जेंकिंस यूज करती हैं। जेंकिंस का फायदा ये होता है कि वो सेल्फ होस्टेड सोल्यूशन है,
और उसको वो अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो कंपनीज क्या करती हैं, बड़ी कंपनी जो है वो अपने सर्वर्स पे होस्ट कर लेते हैं पूरा सोल्यूशन, और वो पूरा वहाँ से मॉनिटर हो रहा होता है। फिर लास्ट ईयर गिटहब एक्शंस आया था, और जब से गिटहब एक्शंस आया था उससे पहले मैं ऐप सेंटर यूज कर रहा था। ऐप सेंटर माइक्रोसॉफ्ट का है। तो फिर उसके बाद ओवर द टाइम ऐप सेंटर में जो है वो मेंटेनेंस खत्म हो गई, तो अब ऐप सेंटर में एंड्रॉयड की बिल्स भी बनती भी नहीं है, तो ऐप सेंटर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए। तो अपेरेंटली माइक्रोसॉफ्ट वाज कन्विंसिंग कि हम ऐप सेंटर के बजाय अज्योर यूज करें। तो अज्योर मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा, ओवरवेलमिंग लगा कि एक छोटा सा पर्पस पूरा करने के लिए मैं इतनी सारी रिसर्च करूँ और इतना सारा इसमें इन्वॉल्व हो जाऊँ। तो फिर गिटहब एक्शंस जो है मुझे बहुत अच्छे लगे। लाइक जब से वो बीटा में थे तब से लेकर मैं गिटहब एक्शंस के ऊपर, उसका एक मेजर बेनिफिट ये है कि ज़्यादातर कोड हमारा गिटहब पे होता है, तो इस वन प्लेस हमें कोई और सोल्यूशन या और कोई वेबसाइट या और कोई प्लेटफॉर्म देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम वहीं पे ही चेक करते हैं, वहीं पे रन करते हैं, वहीं पे रिजल्ट देख लेते हैं। तो ओवर द टाइम जो गिटहब एक्शंस है वो बहुत पावरफुल होता हो गया है, और अभी इतना पावरफुल हो गया है कि मतलब आप इसमें लिटरली कुछ भी कर सकते हो। तो अब एग्जाम्पल आते हैं कि ज़्यादातर यहाँ पे एंड्रॉयड इंजीनियर्स हैं। तो मैं अभी इसको इस बार इस तरह से देखना चाह रहा था कि मैं चाह रहा था कि हम लिमिटेड ना हो जाएं कि सिर्फ एंड्रॉयड ही है। मैं चाह रहा था कि हम कुछ और भी ट्राई करें, तो उस वजह से फिर मैंने ये स्पेसिफिक एग्जांपल डाला है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरी जो वेबसाइट है wajahatkharim.com, वो एक ह्यूगो में बनी हुई है। तो ह्यूगो इज अ स्टैटिक साइट जनरेटर। अब ह्यूगो क्या करता है कि मैंने अपने पीसी में ह्यूगो की कमांड लाइन सेटअप की, और उसमें मैंने मार्कडाउन में जो गिटहब में हम लैंग्वेज यूज करते हैं उसमें मैंने अपना कंटेंट लिखा। मुझे कोई एसईओ नहीं आती, मुझे कोई वेब डेवलपमेंट नहीं आती, मुझे कोई सीएसएस एचटीएमएल नथिंग, कुछ भी नहीं। तो फिर उसके बाद एक कमांड होती है, वो कमांड ह्यूगो की होती है। उस कमांड को मैं रन करता हूँ, तो ह्यूगो क्या करता है कि मुझे वो सारे फाइल्स रीड करके एक एचटीएमएल की स्टैटिक साइट जनरेट करके दे देता है, जिसमें एचटीएमएल होता है, सीएसएस होता है, और ये जो भी फाइल्स एचटीएमएल साइट को रिक्वायर होते हैं, जो भी आपको नजर आ रही है मेरी वेबसाइट, तो वो फिर एक फोल्डर बना के दे देता है जिसमें वो पूरी वेबसाइट होती है। फिर वो पूरी वेबसाइट जो है ना, मैं फायरबेस की सीएलआई यूज करके उसको जो है ना अपने फायरबेस होस्टिंग पे अपलोड करता हूँ। तो फायरबेस होस्टिंग पे अपलोड हो जाती है पूरा फोल्डर, तो उसके बाद 2 मिनट के बाद वो लाइव हो जाती है कि भाई ये लाइव। अब ये जो था ना, ये पहले पूरा ख्वारी करनी पड़ती थी मुझे, बहुत मतलब लैपटॉप पे बैठना पड़ता था। अगर मैं मोबाइल पे आर्टिकल लिख रहा हूँ तो मैं मोबाइल से पब्लिश नहीं कर सकता, मुझे लैपटॉप का एक्सेस चाहिए होगा सिर्फ इसलिए कि मैं 2 कमांड चला सकूं, दैट्स इट। तो मैंने क्या किया कि मैंने उसका एक अपना एक्शन बनाया, ह्यूगो ऑन फायर एक्शन के नाम से, गिटहब का। वो क्या करता है, वो मेरा जो वेबसाइट का कोड है वो एक गिटहब रिपॉजिटरी है। तो वो गिटहब रिपॉजिटरी को उठाता है और उसमें ह्यूगो इंस्टॉल करता है। फिर ह्यूगो के बाद वो ह्यूगो की कमांड चलाता है, फिर उसका एक फोल्डर में पूरी वेबसाइट जनरेट हो जाती है। फिर वो उसको फायरबेस के साथ कनेक्ट करके उसको फायरबेस अपलोड कर देता है। तो मैं क्या करता हूँ, मोबाइल पे होता हूँ या लैपटॉप पे होता हूँ या किसी और के पीसी पे होता हूँ या ऑफिस के पीसी पे होता हूँ, कहीं पे भी होता हूँ, मुझे आर्टिकल लिखने में मसला नहीं होता। मैं आर्टिकल लिखता हूँ और एक गिटहब रिपॉजिटरी जो मेरी बनी हुई है उसमें कमिट करता हूँ और पुश करता हूँ। 2 मिनट के बाद जैसे ही मैंने पुश किया, 2 मिनट के बाद वेबसाइट लाइव है, क्योंकि अब ये सारा काम गिटहब मेरे बिहाफ पे कर रहा है ऑटोमेटिक। तो मैं मोबाइल से चेंजेस करके पुश कर दी वहीं से गिटहब एप्लीकेशन के थ्रू, तो वो भी हो गया लाइव। ठीक है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ के हाउ यू कैन ऑटोमेट व्हाटएवर यू वांट टू डू। ठीक है। तो अब एक और एग्जांपल लेते हैं ओपन सोर्स लाइब्रेरी का। तो फॉर एग्जांपल ओपन सोर्स लाइब्रेरी में आपने ऑफ्टन टाइम नोट किया होगा कि कोई गिटहब की एंड्रॉयड की लाइब्रेरी आप देख रहे हो तो उसमें एक बैज लगा होता है, बिल्ड पासिंग, ग्रीन कलर का। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि यार आप की जो बिल्ड है ना, वो अभी अगर ये कोड आप कम चेकआउट करोगे और अपने पास क्लोन करोगे ना, तो ये आपका कोड फेल नहीं होगा, ये कोड चलेगा। ठीक है, बिल्ड पासिंग का मतलब ये है। तो अब ओपन सोर्स लाइब्रेरी में क्या होता है कि नंबर 1 क्रिएटर का काम होता है कि जब क्रिएटर कोई नया वर्जन अपलोड करना चाहता है अपने किसी ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म पे, जैसे हमारे पास ग्रेडल है, मेविन सेंट्रल है, इस तरह से,
और उसके बाद वो अपनी टीम को बताना चाहता है सेलेक्ट के थ्रू कि यार मैंने अपलोड कर दिया। तो आप क्या करते हो, गिटहब पे कोड पुश करते हो, गिटहब जो है वो ट्रेविस को या गिटहब एक्शंस को या किसी भी CI/CD प्रोवाइडर को एक्टिवेट कर लेता है। उसके बाद बिल्ड पास हो जाती है। बिल्ड पास होने के बाद जो उस आपका सोल्यूशन होता है ना, वो हेरोकू, मेविन सेंट्रल या किसी भी AWS या जैसे मेरा वेबसाइट फायरबेस होस्टिंग पे थी, वहाँ पे उसको अपलोड कर देता है, डिप्लॉय करता है। उसके बाद वो जो है ना सेलेक्ट पे मैसेज छोड़ देता है कि यार नया वर्जन अपलोड हो गया। तो ये अब ये ब्रांच का हो गया। अब इस तरह एक और होता है पुल रिक्वेस्ट का। तो ऑफन टाइम ये होता है कि ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में ना आप कंट्रीब्यूटिंग गाइडलाइंस डालते हो। कंट्रीब्यूटिंग गाइडलाइंस का मतलब ये है कि या कोड इस तरह से फॉर्मेट होना चाहिए, टैब्स के बजाय स्पेसेस यूज होनी चाहिए या स्पेसेस, और जो फंक्शन की मेथड की जो कर्ली ब्रैकेट, ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट है, वो सेम लाइन पे होनी चाहिए, न्यू लाइन पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप एक कोड कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना चाह रहे हो। तो ओपन सोर्स में आप कोई काम कर रहे हो और अलग अलग दुनिया से बहुत सारे लोग आपको कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि हर बंदा आपके उसी गाइडलाइन के हिसाब से कंट्रीब्यूट कर रहा है जो गाइडलाइन आपने सेट की है। अब प्रॉब्लम ये होता है कि ज़्यादातर लोग वो गाइडलाइन पढ़ते नहीं हैं, तो वो फिर ऐसे ही जो है ना कोई बग फिक्स करके या कोई फीचर बना के वो पुल रिक्वेस्ट बना लेते हैं। तो आप जो है ना यहाँ पे अपनी ऑटोमेशन लगा सकते हैं कि जैसे ही किसी ने पुल रिक्वेस्ट बनाई तो उस पे ना आप शुरू हो जाओ, उस पे ऑटोमेशन एक्टिवेट हो जाए, वो जो है ना उसको बिल्ड करे और उसको देखे कि क्या वो उस तरीके का फॉर्मेट, कोड फॉर्मेट यूज कर रही है या नहीं कर रही है, क्या अब वो टेस्ट पास कर रही है या नहीं कर रही है, क्या बिल फेल तो नहीं हो रही, क्या बगी कोड तो नहीं है। वो सारी चीजें आप उस पुल रिक्वेस्ट में चेक करो, और जब तक वो पास नहीं होती ना तब तक पुल रिक्वेस्ट आपकी मर्ज नहीं होगी। तो इस तरीके से आप इन चीजों को भी कंट्रोल कर सकते हो। तो अब आते हैं CI/CD एंड्रॉयड के बारे में। तो एंड्रॉयड में ये पूरा जो सिनेरियो होता है ना वो इस तरह से होता है कि आपने कोड लिखा और आपने गिटहब पे पुश किया, CI शुरू हो गई, उसने जो है वो टेस्ट रन किए और एक्शंस बना और एपीके बनाया, बंडल्स बनाए, ये सारी चीजें हो गई, CI आपकी खत्म हो गई। अब उसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, तो आप फायरबेस पे भेज रहे हो टेस्टिंग के लिए, जैसे अभी खुर्रम ने एक्सप्लेन किया, और या आप उसको गूगल प्ले पे डिप्लॉय कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपकी होगी डिस्ट्रीब्यूशन। इवन अगर आप फ्रीलांसर हो तो फिर आप किसी सिलेक्ट चैनल पे भेज रहे हो या आप किसी क्लाइंट को डायरेक्टली दे रहे हो, तो वो चीजें भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब CI/CD का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब थोड़ा गिटहब एक्शंस का जो है ना वो कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि गिटहब एक्शंस क्या है बेसिकली। तो अभी खुर्रम ने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, तो मैं अभी उसको थोड़ा सा डिटेल्स में जाऊंगा। तो 3 चीजें हैं गिटहब एक्शंस में, वर्कफ्लो, ट्रिगर, जॉब्स। तो पहले पहले देखते हैं वर्कफ्लो क्या है। तो वर्कफ्लो बेसिकली एक ओके, तो वर्कफ्लो जो है ना वो एक सीरीज ऑफ जॉब्स है। लाइक यार अब हमारे पास एक वर्कफ्लो है डिस्ट्रीब्यूट का, एक वर्कफ्लो है रिलीज बीटा का, एक वर्कफ्लो है रिलीज प्रोडक्ट का। तो फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूट का वर्कफ्लो क्या करेगा कि आपका कोड उठाएगा, उसको बिल्ड करेगा, उस पर टेस्ट चलाएगा एम्यूलेटर की और UI यूनिट की, यूनिट टेस्ट और UI टेस्ट वो चलाएगा। उसके बाद जो है ना वो बोलेगा कि यार इसकी एपीके बनाओ, उसने एपीके बना दी, फिर उसके बाद वो फायरबेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ये एक वर्कफ्लो हो गया। तो वर्कफ्लो इज लाइक सीरीज ऑफ ऑपरेशंस कि यार कोड बिल्ड करो, एपीके जनरेट करो, फायरबेस पे भेजो, ये एक ऑपरेशन है। ठीक है, और ये है एक वर्कफ्लो। तो हम अलग अलग तरह के वर्कफ्लो बना सकते हैं। गिटहब एक्शंस में ये वर्कफ्लो बनते हैं एक फाइल के थ्रू, .yml के नाम से आप फाइल बनाते हो, उसका मतलब ये है कि एक वर्कफ्लो हो गया। ठीक है, अच्छा अब ट्रिगर। ट्रिगर का मतलब है कि वो जो वर्कफ्लो आपने बनाया है ना वो एक्टिवेट कैसे होगा, स्टार्ट कहाँ से होगा, ट्रिगर कहाँ से होगा। तो हम उसको बोलते हैं कि आपको कोई कंडीशन, सेट एंड कंडीशन बतानी होती है जिसके थ्रू वो वर्कफ्लो जो है ना स्टार्ट हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ट्रिगर रन टेस्ट ऑन, ठीक है, ऑन पुश। अब ऑन का मतलब है कैसे चलेगा, तो हम बोलेंगे पुश पे। पुश कहाँ पे होगा, ब्रांचेज में। आप कौन सी ब्रांच में, ये आप मेन बता दो, यहाँ पे कामा देके कोई और ब्रांचेज भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये वर्कफ्लो तब चलेगा जब मेन ब्रांच में कोई भी कमिट पुश होगी। इस तरह से आप फिर उसको जो है ना ऑन पुल रिक्वेस्ट भी बना सकते हैं, या फिर जैसे खुर्रम ने दिखाया कि
कोई टैग पुश होगा, ऑन पुश टैग, और उसमें स्टार डॉट स्टार डॉट स्टार इस फॉर्मेट में कोई टैग पुश होगा तो उसके बाद वो ट्रिगर हो जाएगा। तो आप जो है ना बहुत सारे ट्रिगर सेट कर सकते हैं कि ये जो वर्क फ्लो है किस कंडीशन में एक्चुअली स्टार्ट होगा। तो ये हो गया ट्रिगर। अब तीसरी चीज है जॉब। जॉब का मतलब है एक्चुअल काम जो करना, एक्चुअल ऑपरेशन जो करना। तो यूनिट टेस्ट रन करनी है या फिर ग्रेडल कैसे करना है, ये जो है ना ये सारे जॉब्स हैं। अभी मैं आपको आगे जाकर थोड़ा सा डिटेल्स में कोड दिखाऊंगा कि एक्चुअली क्या हो रहा था। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर ऐसे है कि हमारे पास एक वर्कफ्लो है, वो किसी न किसी ट्रिगर से एक्टिवेट होता है और वो जो है ना वर्कफ्लो वो सीरीज ऑफ जॉब परफॉर्म कर रहा है। अब वो जॉब्स या तो एक दूसरे के डिपेंडेंट हैं, जैसे खुर्रम ने हमें दिखाया कि वो दो जॉब्स थे, एक बनाने वाला बिल्ड बनाने वाला, एक बिल्ड डिस्ट्रीब्यूट करने वाला। जब तक बिल्ड बनती नहीं है तब तक वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। तो वो उस तरह से मल्टीपल जॉब्स हैं। फिर हर जॉब के पास एक स्टेप होता है, ठीक है, मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, सीरीज ऑफ स्टेप्स, ठीक है। पहले ये करो फिर ये करो फिर ये करो, ये एक जॉब हो गया। फिर इस तरह से 3 जॉब्स हैं यार। पहले ना हमें एपी के बनानी है, फिर यूनिट टेस्ट चलाना है, फिर उसके बाद वो फायरबेस पे या गूगल प्ले पे डिस्ट्रीब्यूट करने। अब ये 3 जॉब्स मिलके एक वर्क फ्लो बनाती हैं, फायरबेस डिस्ट्रीब्यूशन वर्क फ्लो, इस तरह से। और ट्रिगर होता है कहाँ पे होता है, वो जब भी पुल रिक्वेस्ट बनेगी आप एक ट्रिगर बना दो। पहले मैं देखना चाहता हूँ कि सामने वाले ने ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन की तो है, लेकिन उसकी बिल्ड कैसी बनाई, उसने क्या बनाया, वो मैं देखना चाहता हूँ। तो समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ये हो गया। अब मेरे पास 2 रिपोजिटरी है। एक है इमेजिन की, वो आप लोगों ने शायद देखी होगी पहले। इमेजिन वैसे तो एक सिंपल सी एप्लीकेशन है, ओपन सोर्स, मॉडर्न आर्किटेक्चर और इन चीज़ों को प्रैक्टिस करने के लिए। और रिसेंटली मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि इस एप्लीकेशन को टीवी पे डिप्लॉय किया था, स्मार्ट टीवी पे। तो ऐसे ही देखना चाह रहा था कि टीवी पे डेवलपमेंट कैसे होती है। अच्छा, एक चीज ये हो गई। दूसरी, इमेजिन में मैंने बहुत सारे गिटअप एक्शंस ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट किए हुए हैं। तो अगर आप इमेजिन में देखोगे तो आपको एक्चुअल प्रैक्टिकली दिखाएगा कि क्या क्या आप गिटअप एक्शंस के थ्रू कर सकते हो। उसके अलावा इस स्लाइड के पर्पज के लिए एक स्पेशल डेमो है एंड्रॉयड गिटअप एक्शंस के नाम से, जिसमें बहुत सारे और एक्शंस हैं जो शायद इमेजिन में ना हो, लेकिन वो एक सीरीज ऑफ एक्शंस हैं। एक्चुअली मैं एक बुक लिख रहा हूँ एक्शंस कुक बुक के नाम से, जो कि पूरा इसी के ऊपर है कि गिटअप एक्शंस और एंड्रॉयड और गिटअप एक्शंस कैसे होता है। तो उसका जो है ड्राफ्टिंग प्रोसेस शुरू हो गया है और मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि 3 या 4 महीने में इंशाल्लाह लाइव हो जाएगा, पब्लिश हो जाएगा। तो अभी डेमो देख लेते हैं, ठीक है। तो सो फार पहले पहले आते हैं हमारे एंड्रॉयड एक्शन गिटहब एक्शन के ऊपर। स्लाइड्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा तो उसमें ये लिंक है। तो इसमें मैंने काफ़ी सारे एक्शन दिखाए कि यूनिट टेस्ट कैसे चलाते हैं। तो इसका ये फाइल है। फिर एपीके कैसे बनाते हैं, और जो एपीके है वो गिटहब रिलीजेस में कैसे अपलोड करते हैं, एपीके स्लैक पे कैसे भेजते हैं, एपीके ऐप सेंटर पे कैसे भेजते हैं, और एपीके डिया भी बहुत सारे लोगों ने यूज़ किया होगा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। उसके बाद एपीके गूगल प्ले पे कैसे भेजते हैं। अब गूगल प्ले पे अपलोड करने का थोड़ा लंबा प्रोसेस है, तो मैंने आर्टिकल शेयर किया है। और ऐप फायरबेस डिस्ट्रीब्यूशन पे एपीके कैसे भेजते हैं, ये भी थोड़ा सा डिटेल आर्टिकल है। और अगर आप ओपन सोर्स लाइब्रेरी क्रिएट करते हो तो फिर उसमें यह है कि बिन ट्रे पे कैसे अपलोड करते हैं। और इसी तरह से मेविन सेंट्रल का भी एक आर्टिकल अभी मेरे पाइपलाइन में है कि मेविन सेंट्रल पे ऑटोमेशन के थ्रू कैसे अपलोड करते हैं, ठीक है। तो ये है। अब हम आते हैं कोड पे। तो अगर आप कोई भी एक्शन बनाना चाहते हो ना, तो आप बस कुछ भी नहीं करोगे, आप यहाँ पे जाओगे, एक फाइल बनाओगे और उसका बोलोगे एनी एग्जाम्पल वर्कफ्लो। तो ये बना दिया मैंने, उसका एक्सटेंशन डाली YML में। लेकिन शर्त ये है कि ये जो जाएगा ना, ये जाएगा डॉट गिटअप में। तो मैंने उसको बोला डॉट गिटअप और इस फोल्डर में आएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि डॉट गिटअप के फोल्डर में हमारे पास ऑलरेडी वर्क फ्लोर का फोल्डर बना हुआ है। वर्क फ्लोर का फोल्डर आप बनाओ ना बनाओ डजंट मैटर, वो मैंने अपने लिए बनाया हुआ था कि दिखाने के लिए कि क्या है। तो अब फॉर एग्जांपल हम एपीके जनरेशन की बात करते हैं कि एपीके जनरेट कैसे होती है। तो सबसे पहले था कि वर्क फ्लो का नाम क्या है, जनरेट एपीके, और उसके बाद मैंने डिफाइन किया ट्रिगर क्या है कि यार ये मेन ब्रांच में कोई भी चीज़ पुश होगी ना तो शुरू हो जाएगा। उसके बाद जॉब्स आते हैं।
जॉब का मतलब है कि आप क्या क्या करना चाह रहे हो। अब जॉब को डिफाइन करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं जॉब का एक नाम डालता हूँ और उसके बाद उसके सामने कॉलन डाल देता हूँ। अब ये जॉब हो गई। अब आप देख रहे हो कि जॉब्स हैं और उसके बाद फिर ये इंडेंटेड है, तो एपीके हो गया। अब ये एक जॉब हो गई। इस तरह से और भी जॉब्स मैं डिफाइन कर सकता हूँ। अब जॉब का नाम क्या है और उसके बाद फिर नेक्स्ट चीज़ आती है कि ये जॉब चलेगी कहाँ पे। तो मैं इसको बताता हूँ Ubuntu में चलेगी। ठीक है, अब 18 चल रही है, आप लेटेस्ट लिख लो तो लेटेस्ट आएगा। अब होगा क्या कि गिटहब एक्शन एक डॉकर कंटेनर उठाएगा Ubuntu का और वो आपके पास प्रेजेंट कर लेगा कि आप इसको आप जो भी करना चाहो ना इसमें कर सकते हो। तो आप Ubuntu की कोई भी कमांड इसमें चला सकते हैं। तो अब हमें करना क्या है कि उस डॉकर कंटेनर में, उस आइसोलेटेड Ubuntu के ओएस में अभी हमारा कोड अवेलेबल नहीं है। तो पहले पहले हमें उसका कोड डालना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्क फ्लो एक सीरीज ऑफ जॉब्स होता है और उसके पास सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं हर जॉब के बाद। तो अब हम स्टेप्स डिफाइन कर रहे हैं। तो ये पहला स्टेप है कि यार चेकआउट यूज करो। चेकआउट क्या करेगा कि वो जो है ना आपका कोड चेकआउट कर देगा। तो अगर आपको ये सिंटैक्स समझ नहीं आ रहा तो बेसिकली है क्या कि हमारे पास गिटहब एक्शंस की गिटहब एक्शंस की मार्केट प्लेस है। ठीक है, तो उसमें हमारे पास बहुत सारे गिटहब एक्शंस पड़े होते हैं। लाइक आप कुछ भी सर्च कर लो, लेट्स एंड्रॉयड सर्च कर लेते हैं। ठीक है, तो उसमें आ जाएगा यार ऐप साइज डिफरेंट कैसे होता है। एंड्रॉयड ट्रांसलेशन ये क्या करेगा, ट्रांसलेट करके दे देगा आपको स्ट्रिंग्स को। एंड्रॉयड इम्यूलेटर चलाएगा या फिर लिंट चलाएगा या फिर बिल्ड एंड्रॉयड ऐप करेगा। मतलब उसमें बहुत सारे एक्शंस होते हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से हम कोई एक उठा लेते हैं एंड्रॉयड एनटी के सेटअप कैसे करते हैं उसका। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यार आप जो है ना इसको इस तरह से कर सकते हैं। ये होगा कि ये आपने यूजेस करके बोल दिया कि यार ये इस बंदे की रिपॉजिटरी है और ये इसकी एक्शन का नाम है और ये इसका वर्जन है। तो ये आपको डिटेल दे रहा है और उसमें फिर आप पैरामीटर पास करोगे कि कौन कौन से पैरामीटर हैं और उसके बाद जो है वो आप इस तरह से उसको रन करके आप चला सकते हो। ठीक है, इस तरह से जो मैंने बनाया था ह्यूगो ऑन फायर का, तो वो भी यहाँ पे मैंने उसको होस्ट किया था। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम देखते हैं ये ह्यूगो ऑन फायर है। ठीक है, तो इसमें जो है मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये आप उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हो। तो सिर्फ मैं ही नहीं, जो भी लोग ह्यूगो की वेबसाइट फायरबेस पे होस्ट कर रहे हैं तो उसको बड़े आराम से जो है ना अपने पास यूज़ कर सकते हैं और पूरा ऑटोमेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्शंस जो है जब भी आप यहाँ पे एक्शन देखो उसका मतलब ये है कि ये गिटहब वालों का अपना एक्शन है। ठीक है, क्योंकि अगर आप मेरा यूज़ करोगे तो फिर उसमें लिखा होता है वजाहत करीम 3 जो मेरा गिटहब यूज़र नेम है। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि यार गिटहब का जो है ना चेकआउट यूज़ करो और ये डाउनलोड करो पूरा कोड। उसने डाउनलोड कर दिया। अब पहला स्टेप है कि जेडी सेटअप करना। तो ये अगेन ये गिटहब का अपना एक्शन है सेटअप जावा का। वो क्या करता है, जावा डाउनलोड करके जेडी सेटअप कर लेता है। आपको नाम बताते हो कि 11 है या 8 है। ठीक है, एंड्रॉयड ज़्यादातर इन दोनों में चलता है। अच्छा, उसके बाद आप फिर बोलते हो कि यार ग्रेडल डब्ल्यू जो है ना उसकी कमांड्स आप यूजुअली नहीं चला सकते, तो फिर आप उसको जो है ना उसको मॉड एक्सेस देते हो ताकि वो एग्जीक्यूट हो जाए। तो ये भी एक स्टेप है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है बिल्ड डीबग वेल। अब यहाँ पे एग्जैक्टली वही कमांड चलती हैं जो आप यूजुअली एंड्रॉयड स्टूडियो में चलाते हो। असेंबल डीबग, असेंबल ये, असेंबल वो, और सेम तरीके से एंड में फिर आप बोलते हो कि यार ये अब एपीके जो है ना अपलोड कर दो आर्टिफैक्ट पे। तो आर्टिफैक्ट में अभी आपको दिखाता हूँ कि क्या है। तो बेसिकली क्या होता है कि गिटहब वालों का अपना एक एक्शन है अपलोड का, एक है डाउनलोड का। आप उसको बता दो कि यार नाम जो है ना वो ऐप होना चाहिए और पाथ जो है ना ये है कि अभी इसका मतलब ये है कि आपका रूट प्रोजेक्ट डायरेक्टरी, फिर उसके बाद ऐप के फोल्डर में, फिर बिल्ड के फोल्डर में, फिर आउटपुट के फोल्डर में जहाँ पे हमारी एपीके होती है एक्चुअल में। तो अगर आप कोई भी गिटहब एक्शन यूज कर रहे हो तो आप पहले जो है ना एंड्रॉयड के लोकल स्टूडियो में वो सारी कमांड चला के देखो कि वो एग्जैक्टली किस पाथ पे जा रही है। फिर वो रिलेटिव पाथ जो है ना यहाँ पे आके कॉपी कर लो क्योंकि वो सेम होगा। ठीक है, अब वापस आते हैं हमारे अपलोड के ऊपर। अच्छा, तो अब होता क्या है कि जैसे ही आप ये एक्शन चलाते हो ना तो उसके बाद जो है ना यहाँ पे ना ये आपके पास पूरी दिखाता है कि यार ये हमने एक्शन चला दिया। ठीक है, एक मिनट मैं ना अभी वो चलाता हूँ जनरेट एपिक वाला। ठीक है, अच्छा, तो ये जनरेट एपिक वाला चला दिया तो उसने आप यहाँ पे जनरेट एपिक सक्सेसफुल हो गया
और यहाँ पे देख रहे हो कि ये आपका जिस नाम से आपने अपलोड किया था ना वो आ गया, लेकिन ये अभी एक्सपायर हो गया। अगर ये एक्सपायर नहीं होता ना तो यहाँ पे बटन आ रहा होता डाउनलोड, और आप लिटरली वो एपीके डाउनलोड कर लेते जो आपने अभी गिटहब एक्शन के थ्रू अपलोड किए। एक ये हो गया। दूसरा कि इसके अंदर जो है ना हमारे पास एक्शंस के अंदर स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये हो गया, तो इसके अंदर जो है हमारे पास ये सारा एक्सपायर हो गया, ओके नो प्रॉब्लम। तो अब इसी तरीके से ना हमारे पास और भी एक्शंस हैं इस रिपॉजिटरी में। फॉर एग्जांपल सेंड एपीके टू सेलेक्ट, ठीक है, कि जब भी पुश हो जाए, फिर अगेन U1 टू उठाओ, फिर अगेन जेडीके सेटअप किया और ग्रिडल लगाया, और उसके बाद एपीके बनाया, फिर एपीके अपलोड कर दिया, ठीक है। अब मुझे वो एपीके सेलेक्ट पे भेजना, तो सेलेक्ट के लिए फिर मैंने गिटहब एक्शन की मार्केट प्लेस पे गया, वहाँ पे मैंने सेलेक्ट सर्च किया, मुझे एक मिल गया जो एक फाइल को सेलेक्ट पे अपलोड करता था, ये एक्शन सेलेक्ट फाइल अपलोड एक्शन। इसको मैंने उठाया और उसको यूज़ किया, और उसकी डॉक्यूमेंटेशन में गया तो आपको सेलेक्ट का एक टोकन चाहिए, वो आपने उठाया। उसके बाद आपने यहाँ पे देखा है सीक्रेट, तो एक्चुअली हम टोकन यहाँ पे डायरेक्टली डाल नहीं सकते, क्योंकि फिर वो पब्लिक हो जाएगा और आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। तो फिर गिटहब जो है ना उसको कुछ इस तरह से डील करता है कि आप रिपॉजिटरी की सेटिंग्स में आओ, और आपको यहाँ पे मिलेगा सीक्रेट का टैब, और यहाँ पे जो है ना आप वो लिखो कि हमारा सीक्रेट कौन सा। तो ऐप सेंटर, फायरबेस, गूगल प्ले, इन सब के जो टोकन्स है ना वो यहाँ पे आप ऐड करते हो, न्यू रिपॉजिटरी सीक्रेट करके कि यार ये सीक्रेट का नाम है और ये सीक्रेट की वैल्यू है, और ये ऐड हो गया। उसके बाद फिर आप वो जो सीक्रेट है ना वो अपने पास गिटहब एक्शंस में यूज़ कर सकते हो, और गिटहब एक्शंस कभी उसको रिवील नहीं करेगा, और इवन आप फिर दोबारा उस सीक्रेट की वैल्यू देख भी नहीं सकते। तो आप सिर्फ उसको अपडेट कर सकते हो डायरेक्ट कि यार इसमें ये नई वैल्यू डाल दो, और या फिर आप उसको डिलीट कर सकते हो। तो ये एक वो होता है कि आप जो सीक्रेट कीज होती हैं, या फिर की स्टोर का पासवर्ड है, की स्टोर का एलियास है, वो जो चीज़ें ना वो आप फिर डायरेक्टली गिटहब एक्शंस में नहीं डाल सकते, फिर वो आपकी रिवील हो जाएंगी। तो फिर वो जो है ना आप इन्वायरमेंट के थ्रू सेटअप करते हो, तो गिटहब जो है वो खुद ही उसको गिटहब एक्शंस जो है वो उसको डायरेक्ट सीक्रेट से उठाते हैं। जैसे हमारे पास ये अभी सेलेक्ट पे आ रहा था कि हम इसको कैसे जो है वो यहाँ से उठा सकते हैं। तो ये हो गया सीक्रेट डॉट सेलेक्ट टोकन। तो जो भी मैंने डाला वो वैल्यू यहाँ पे आ गई, और किसी को पता भी नहीं लगती कि क्या है, और उसके थ्रू जो है ना वो यूज हो जाता है। सही है, तो एक हो गया ये। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग, प्रॉपर एग्जांपल कि इमेजिन की ऐप में ना मैंने बहुत सारे गिटहब एक्शंस इंटीग्रेट किए हुए हैं। तो फॉर एग्जांपल पहला है कि क्या टेस्ट पास हो रही हैं या फेल हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा है कोड कवरेज कैलकुलेट करने का कि कितना कोड जो है वो टेस्ट के थ्रू पास हो रहा है। और उसके बाद मैंने जो है इसमें कुछ और एक्शंस इंटीग्रेट किए थे डिपेंडाबॉट के। अब डिपेंडाबॉट क्या करता है कि जब जब कोई नई रिपॉजिटरी आ जाती है ना, फॉर एग्जांपल हम आते हैं कोयल पे, तो कोयल का इमेजिन की एप्लीकेशन 1.1 यूज कर रही है, अब अभी 1.4 आ गया। तो जैसे ही नया वर्जन आया ना, तो डिपेंडाबॉट क्या करेगा कि मुझे बताएगा कि यार ये नया वर्जन आया, इसमें ये नई नई चीज़ें आ गई हैं, और इसमें ये फीचर्स हो गए, और आप जो है ना उसको मर्ज कर लो। तो ये उसने पुल रिक्वेस्ट बना दी, और उसमें उसने लिखा है फाइल चेंज में कि इसने ग्रेडल के वर्जन को 1.1 से 1.4 कर दिया है, और अब ये मुझे बोल रहा है कि मैं इसको मर्ज कर दूँ। अगर मैं इसको मर्ज कर दूंगा ना, ये खुद ही जो है ना उसको अपडेट करके फिर नई बिल बना के दे देगा। तो डिपेंडाबॉट के थ्रू आप जो है ना डिपेंडेंसी को इस तरह से मैनेज कर सकते हो, रिसाइकलर रिव्यूज को, और मार्क एंड्रॉयड, जो भी आपकी हेल्थ, नेविगेशन, कॉटलैंड, इस तरह की डिपेंडेंसी। तो एक ये हो गया। उसके बाद दूसरा है हमारे पास कि आप जो है वो गूगल प्ले पे कैसे अपलोड करते हैं, इसमें एग्जांपल है, और फायरवे डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल है, पीआर का एग्जांपल है कि आप कोई भी पीआर बनाओगे तो उसको कैसे होगा। अब मैं आपको एक्शन में दिखा रहा हूँ, एक्चुअल में कि रियल सिनेरियो में ये कैसे चलता है। तो एयर लिफ्ट की रिपॉजिटरी दिखा देता हूँ आपको मैं कि ये देखें हमारे पास गिटहब एक्शंस हैं, और इसमें हमारे पास बहुत सारे एक्शंस बने हुए हैं, स्टेजिंग का, क्यूए का, प्रोडक्शन का। तो जब भी क्यूए वाला बोलता है कि यार मुझे जो है ना स्टेजिंग की बिल्ड पकड़ा दो, तो हम स्टेजिंग बिल्ड में आते हैं, और यहाँ पे जो है ना मैं उसको बोलता हूँ रन वर्क फ्लो, और उसको मैं बताता हूँ कौन सी ब्रांच में चलाना। तो हर फीचर की, हर बग की हम अलग ब्रांच बनाते हैं।
तो वो जो है ना यहाँ पे आ जाती हैं सारी ब्रांचेस। फिर हम उस ब्रांच की जो है ना बिल्ड बनाते हैं। जैसे ही रन वर्क फ्लो करते हैं वो जो पूरी है ना वो उसमें यहाँ पे चलती है और एपी के जनरेट होता है। ये सारे स्टेप्स नज़र आ रहे होते हैं जो भी आपके होते हैं। सेटअप जेडी के हो गया, फिर उसके बाद बिल्ड बनी, फिर उसकी टेस्ट चली, फिर एंड में जो है वो अपलोड हो गई वहाँ पे फायरबेस पे। फिर फायरबेस से वही ऐप टेस्टर वाला कॉन्सेप्ट चलता है जैसे आपने अभी खुर्रम ने दिखाया था। और फिर उसके थ्रू जो है ना आप वहाँ से डाउनलोड कर, क्यूए वालों के पास एक्सेस होता है, वो डाउनलोड करते हैं और वो रन करते हैं और टेस्टिंग करते हैं, सारा कुछ करते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमारे पास होती है कस्टम बिल्ड की। तो ऑफ इन टाइम हमारे पास ऐसा होता है कि हमें कस्टम बिल्ड जो है ना बनानी होती है पैरामीटर्स के साथ। तो वो देखो फॉर एग्जाम्पल कैसे होती है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि यार ये डेवलप में होनी चाहिए और इसका जो सर्वर है ना वो मैं बताऊंगा कि कौन सा सर्वर होगा। तो सर्वर का मतलब ये है कि क्यूए का, स्टेजिंग का, प्रोडक्शन के सर्वर के बजाय अब मेरा जो लोकल सर्वर है ना वो यहाँ पे होना चाहिए। तो मैं बोलूँगा कि यार ये सर्वर डाल दो और ये रिलीज नोट्स हैं और ये नेम प्रीफिक्स है। नेम प्रीफिक्स का मतलब है कि बाय डिफ़ॉल्ट आपकी एप्लीकेशन का नाम जब मोबाइल पे इंस्टॉल होगी ना तो उसका नेम प्रीफिक्स आएगा एयरलिफ्ट एक्सप्रेस। अब मैं बोलता हूँ कि यार ये ग्लोबल है, तो फिर क्या होगा कि वो बोलेगा कि यार ये ग्लोबल की ऐप है, तो उसमें नाम आ जाएगा ग्लोबल एयरलिफ्ट एक्सप्रेस। तो क्यूए वालों को आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाती है कि ये कौन सी बिल्ड है। तो फॉर एग्जांपल वजाहत जो है वो बैकएंड इंजीनियर है और उसने अपने लोकल एनवायरनमेंट उसने सेटअप किया हुआ है और वो उसकी बिल्ड बनाना चाह रहा है। तो वो बार बार जो है ना वो एंड्रॉयड इंजीनियर्स को बोलेगा नहीं कि यार मुझे बिल्ड बना के दे दो, मुझे बिल्ड बना के दे दो। वो अपना काम कर रहे हैं। तो वो क्या करेगा कि वो गिटहब की रिपॉजिटरी में आएगा और यहाँ पे वो अपने लोकल सर्वर की यूआरएल डालेगा और बोलेगा कि यार ये जो है ना ये वजाहत की बिल्ड है। तो उसने डाला वजाहत और आगे एयरलिफ्ट एक्सप्रेस ऐड हो जाएगा। फिर वो जो बिल्ड है ना वो क्यूए वालों के पास चली जाएगी। क्यूए जो उसके साथ पार्टनरशिप में काम कर रहा है उसको पता होता है कि यार ये है। तो ये एक क्या कहते हैं झलकी है कि आप गिटहब एक्शन के थ्रू क्या कुछ नहीं कर सकते। मतलब लिटरली जो है ना दिन में जो है ना हमारे कोई 20-25 पता नहीं कितनी बिल्ड जनरेट हो रही होती हैं ऑल द टाइम। फॉर एग्जांपल अगर हम आज देखें ना तो ये 2 आवर्स अगो हुई है, ये 5 आवर्स अगो हुई है, 7 आवर्स अगो हुई है, ये येस्टरडे है, ये भी येस्टरडे। तो हमारी ना हर वक्त ये कुछ ना कुछ चल रहा होता, ठीक है, ऑल द टाइम। किसी को बिल्ड देने में मसला नहीं होता हमें अगेन। तो ये पूरा जो सेटअप है ये हमने किया था, मैंने और मेरे एक और लीड इंजीनियर ने, उन्होंने साथ में किया था। तो ये एक एग्जांपल है और बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने इमेजिन में और गिटहब एक्शंस वाली ये रिपॉजिटरी जो है डेमो वाली इसमें भी डाले हुए हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी चीज़ और पूछनी हो या कुछ हो तो आप अभी यहाँ पे पूछ सकते हैं और या फिर मुझे रीच आउट कर सकते हैं, एंड्रॉइड कम्युनिटी में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड अटेंडिंग। थैंक यू वजाहत भाई, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। अगर किसी ने का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले फिर। अच्छा, तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि गिटहब एक्शन की प्राइस क्या है। इसकी ये है 2000 मिनट्स होते हैं हर मंथ के लिए। तो अगर आपकी बिल्ड जो है वो आपका बड़ा प्रोजेक्ट है और आपकी बिल्ड जो है वो 10 मिनट लेती है एक बार बनाने में, तो उसका मतलब ये है कि आप महीने में 200 बिल्ड बना सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करता है। वेयर कैन आई फाइंड द रिकॉर्डिंग ऑफ कंप्लीट सेक्शन? आई थिंक ये यूट्यूब पे अपलोड होगी एंड्रॉयड कम्युनिटी के चैनल पे, तो वहाँ पे फिर शेयर हो जाएगी। कैन वी यूज इट विथ फ्लटर? हाँ, ऑफकोर्स आप किसी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप मार्केट प्लेस में जाओगे और आप वहाँ पे जाकर सर्च करोगे कि फ्लटर के एक्शंस कौन से हैं, तो फिर फ्लटर सर्च करोगे तो बहुत सारे फ्लटर के एक्शंस आ जाएंगे जो फ्लटर में अलग अलग टास्क परफॉर्म करने में आपको बताएंगे कि कैसे परफॉर्म होते हैं। तो एक चीज़ मैंने नोट की थी कि यूआई टेस्ट जो है ना, यूनिट टेस्ट आप U12 पे चला सकते हो, लेकिन यूआई टेस्ट के लिए हमें इम्यूलेटर चाहिए होता है। और एमुलेटर अगर आप U12 में सेटअप करोगे तो उसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर एमुलेटर वाली कोई भी वर्क फ्लो होती है जिसमें एमुलेटर की ज़रूरत होती है तो उसको जो है ना हम U12 के बजाय मैक ओएस में चलाते हैं। तो मैक ओएस में हम एमुलेटर की टेस्ट आराम से चला सकते हैं, ठीक है। Which platforms are free? Like there are lot of options like Jenkins, GitHub Action.
गिटहब एक्शंस वैसे फ्री है, 2000 मिनट्स इनफ है। हम लोग फॉर एग्जांपल एयर लिफ्ट में अभी तक फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं और हमारे पास लिटरली बहुत बिल्स बन रही होती हैं रोज, लेकिन हमें अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी है। मतलब कभी हमारे पास ऐसी वार्निंग नहीं आई कि यार आपका टाइम खत्म हो गया है इस तरह का कुछ। तो ये है। और वैसे आप ट्रेविस यूज़ कर सकते हैं और जेंकिन्स आप कंप्लीटली फ्री यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उस केस में फिर आपको जेंकिन्स जो है वो अपने सर्वर पे या अपने लोकल पीसी पे होस्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप अपने लोकल पीसी पे होस्ट करेंगे तो उससे अच्छा है कि आप जेंकिन्स यूज़ करने के बजाय जो है ना आप खुद ही कर लो। एक और ऑप्शन है फास्टलेन का। तो फास्टलेन काफ़ी चीज़ों में बहुत अच्छा है और मैंने इमेजिन में जो है वो फास्टलेन की भी इंटीग्रेशन दिखाई है। एक ब्रांच है फास्टलेन के नाम, फास्टलेन CI/CD के नाम से इमेजिन की रिपॉजिटरी में, उसमें मैंने दिखाया है कि फास्टलेन कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो फास्टलेन उन लोगों के लिए है। मैंने मतलब रिसेंटली एक बंदे ने मुझे अप्रोच किया था ये बोल के कि यार हमारा जो कोड है ना वो गिटहब पर नहीं है, हमारा कोड बिटबकेट पर है और हमारी कंपनी का। अब मैं उसमें जो है ना वो ऑटोमेशन करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको कैसे करूँ? तो मैंने उसको बोला कि यार उसने कहा कि मैं गिटहब की मिरर रिपॉजिटरी बनाऊंगा जो बिटबकेट से मिरर होती रहेगी। तो मैंने उसको बोला कि यार ये तो फिर कंपनी के रूल्स के खिलाफ हो जाएगा, कंपनी का कोड जो है आप क्लोन कर रहे हो किसी और जगह पे। तो उसने कहा यही प्रॉब्लम है। तो फिर मैंने उसको बताया कि आप फास्टलेन यूज़ करो। और फास्टलेन का मतलब ये है कि फास्टलेन में आप उसी तरह से सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और जिस तरह से गिटहब एक्शंस की मार्केट प्लेस है उस तरह से फास्टलेन में भी बहुत सारे एक्शंस हैं जो आपको प्री बिल्ट इन मिल जाते हैं। वैसे ही तो आप क्या करते हो कि आप वो एक्शन यूज करके एक YML फाइल बनाते हो, वो एक कॉन्फ़िगरेशन होती है। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि वो होस्ट नहीं होता, आप बस एक कमांड चलाते हो और वो सारे काम हो जाते हैं। तो मैनुअल काम से फिर भी बचत हो जाती है, लेकिन ये है कि वो आप किसी सर्वर पे नहीं चला सकते हो, आपको अपने पीसी पे चलाना होता है। लेकिन फिर भी बहुत ईज़ी हो जाता है। लाइक आप एपीके बनाई, फिर उसको फायरबेस पे अपलोड किया, फिर रिलीज़ नोट लिखे, फिर ये लिखे, फिर वो लिखे, फिर पब्लिश किया। ये ख्वारी बचने से पहले आप जो है ना